بات کریں گے شہر میں بدترین اسموگ صورتحال کی۔ تو شہر بدستور فضائی آلودگی کے نرغے میں ہے۔ شہر کی فضا انتہائی مضر صحت ہے۔ زہریلی گیسز، دھوئیں اور گرد سے لاہور دھندلا چکا ہے۔ مجموعی شرح 454 کے ساتھ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور پہلے نمبر پر ہے۔ فضائی آلودگی کا ملبہ بھارت پر ڈالنے کا پول بھی کھل گیا اور امرتسر میں فضائی آلودگی کی شرح صرف 161 ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ پنجاب حکومت نے اسموگ کی وجہ بھارت سے آنے والی ہوائیں بتائی تھیں۔ تو شہر بدستور فضائی آلودگی کے نرغے میں ہے۔ فضا انتہائی مضر صحت ہے اور زہریلی گیسز، دھوئیں اور گرد سے لاہور دھندلا چکا ہے۔ تازہ ترین اپڈیٹس لیں گے اسموگ کے حوالے سے شہر میں کیا صورتحال ہے۔ کومل اسلم ہمارے ساتھ ہیں۔ جی کومل، بتائیے گا۔ گرد آلود ہوائیں اور اسی کے ساتھ ساتھ گاڑیوں سے گندا دھواں، فیکٹریوں سے نکلنے والا بھی آلودہ دھواں جو ہے لاہور کی فضا کو برے طریقے سے متاثر کر رہا ہے۔ اسموگ کی صورتحال میں کافی زیادہ اضافے کا سبب بھی بن رہا ہے۔ دوسری جانب محکمہ ماحولیات کا پول بھی کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ پنجاب حکومت سمیت محکمہ ماحولیات جو ہے وہ سارا ملبہ ڈال رہے تھے بھارت سے آنے والے آلودہ ہواؤں کے پر کہ آلودہ ہوائیں جو ہے وہ بھارت سے لاہور میں داخل ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور کی فضا جو ہے وہ کافی زیادہ متاثر ہو رہی ہے، جبکہ اس کا پول آج کھل کر سامنے آ گیا۔ امرتسر میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح 161 ریکارڈ کی جا رہی ہے، جبکہ لاہوریوں کو بتایا یہی جا رہا تھا کہ بھارت کی وجہ سے جو ہے وہ لاہور کی فصلیں تو جلائی جاتی ہیں، لیکن زیادہ تر یوں کہہ لیں کہ جو فضا خراب ہو رہی ہے وہ بھارت کی وجہ سے ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تمام کیا دھرا جو ہے وہ ہمارے اپنے لاہوریوں کا ہے اور محکمہ ماحولیات کی بر وقت اقدامات نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ ابھی بھی نوٹیفیکیشن مراسلے جاری ہو رہے ہیں، روز ہم دیکھتے ہیں صبح کے اوقات میں، دوپہر میں، شام میں، اس طرح لگتا ہے کہ 3 وقت کا کھانا جو ہے وہ 3 وقت کا نوٹیفیکیشن جاری کر کے مل رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے اگر ہم کام کی بات کریں، جو عملی کام ہمیں نظر آنا چاہیے، جو کارروائیاں نظر آنی چاہیے، وہ بالکل صفر نظر آ رہی ہیں۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح جو ہے وہ اس وقت بھی 454 ریکارڈ کی گئی ہے۔ لاہور آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر، جبکہ پاکستان آلودہ ممالک میں پہلے نمبر پر AQI خراب کی وجہ سے جو ہے وہ پہلے نمبر پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ وہیں اگر ہم لاہور کے مختلف علاقوں کی بات کرتے ہیں تو فیز 8 DHA میں 734، سید مراتب علی روڈ میں 639، غازی روڈ میں انٹرچینج میں 537، US کونسولیٹ میں 493، عسکری 10 میں 419 ایئر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح جو ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ جو سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب ہے، ان کو لاہور میں رہ کر لاہور کی فضا کے لیے جو ہے وہ بہتر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ وہ جنیوا کی فضائیں انجوائے کر رہی ہیں اور لاہور کو انہوں نے اسموگ کے پیش نظر چھوڑ دیا ہے۔ اس پر بھی جو ہے وہ ذرا نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لاہوریے جو ہیں وہ اس فضا سے خود کو بچا رہے ہیں، اس فضا کی وجہ سے بہت سی مشکلات سے دوچار ہو رہے ہیں، جبکہ جن کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے وہ تو پاکستان میں ہی موجود نہیں ہے، تو لاہور کی فضا کو کیا ہی بہتر کرنے میں اقدامات کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ڈیلی بیسس پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کاروائیاں ہو رہی ہیں، اینٹوں کے بھٹے مسمار کیے جا رہے ہیں، فیکٹریوں کو سیل کیا جا رہا ہے، باقاعدہ طور پر اب ایئر پیوریفائرز لگانے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ مراسلہ جاری کیا گیا ہے، لیکن کیا کوئی ایک وقت مقرر کیا گیا ہے کہ کب تک ایئر پیوریفائرز لگائے جائیں گے؟ اس حوالے سے جو ہے وہ DG ماحولیات کو بھی جواب دینے کی ضرورت ہے کہ کیا کوئی ایک وقت تعین کیا گیا ہے کہ اس وقت تک جو ہے وہ لاہور کی فضا کو بہتر کرنے کے لیے ایئر پیوریفائرز کو نصب کرنا بے حد ضروری ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مراسلے جاری کرنے سے کام بالکل بھی سامنے نہیں آئے گا، بلکہ اس کے لیے ہمیں عملی کام دکھانے کی ضرورت ہے، فیلڈ میں آنے کی ضرورت ہے۔ گھر بیٹھے، آفس میں بیٹھے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے جاتے ہیں، لیکن جو صورتحال ہے وہ بالکل صفر نظر آ رہی ہے۔ آج بھی جو ہے وہ لاہور مکمل طریقے سے سفیدی کی چادر اوڑھے ہوئے ہے، ایون حد نگاہ بھی محدود ہو گئی ہے۔ اب تو فوگ کا سیزن بھی شروع ہو چکا ہے، فوگ اور اسموگ کا مکسچر لاہوریوں کو مزید مشکلات سے دوچار کر رہا ہے۔ وہیں اگر ہم بات کرتے ہیں لاہور کے ٹیمپریچر کے حوالے سے تو موجودہ درجہ حرارت جو ہے وہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کم سے کم درجہ حرارت جو تقریباً 18 اور زیادہ سے زیادہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا۔ وہیں ہم بات کرتے ہیں لاہور میں بارشوں سے متعلق، تو محکمہ موسمیات کی جانب سے فی الوقت بارشوں سے متعلق کوئی امکانات ظاہر نہیں کیے جا رہے، لہٰذا محکمہ ماحولیات اور موسمیات کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا کہ اگر سرٹن بادل موجود ہوں گے جس میں نمی بہت زیادہ ہوگی تو مصنوعی بارش کا منصوبہ جو بنایا گیا ہے اس کو کرنے کے بارے میں جو ہے وہ سوچا جا سکتا ہے، جبکہ اب ایسے بادل موجود نہیں ہیں تو یہ منصوبہ بھی جو ہے وہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اور لاہور ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ کومل اسلم تھیں، تفصیلاً اپڈیٹ کر رہی تھیں۔ اسموگ کے پیش نظر بیرونی سرگرمیوں پر بھی پابندی عائد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔
हर किस्म की खेलों, नुमाइशों और तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। रेस्टोरेंट्स की डाइनिंग पर भी पाबंदी आयद है और मजहबी इज्तिमाआत मुस्तस्ना हैं। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप्स और करियाना स्टोर्स भी मुस्तस्ना हैं। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में सिर्फ ग्रॉसरीज और मेडिकल सेक्शन ही खुले रहेंगे। खिलाफ वर्जी पर पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 के तहत कार्रवाई की जाएगी। बसाम सुल्तान हमारे साथ है, मजीद उनसे बात करेंगे। जी बसाम, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, शहर में स्मॉग जो है वो ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दिन ब दिन अबतर होता जा रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सांस लेने की बीमारियां, इसके साथ साथ दीगर मसाइल भी जो है वो जन्म ले रहे हैं, जिसके पेश नज़र एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मुश्तरका फ़ैसला किया गया है कि शहर के अंदर जो बैरूनी एक्टिविटीज़ हैं उनको महदूद किया जाए, उनके ऊपर जो है वो पाबंदी आयद की जाए। इसी हवाले से शहर के अंदर तमाम जो आउटडोर डाइनिंग है, इसके साथ साथ जो पार्क्स, फेस्टिवल्स और आउटडोर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है। साथ ही साथ जो शहर के अंदर मार्केट्स हैं इनको शाम 8 बजे बंद करने का जो है वो फ़ैसला किया गया है, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से करवाई जाएगी। मज़ीद जो है वो नोटिफिकेशन में बताया गया है कि सिर्फ जो फार्मेसीज़ हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, मेडिकल लेबॉर्ट्रीज़ हैं, पेट्रोल पम्प्स हैं, ऑयल डिपोज़ हैं, तंदूर्स हैं, बेकरी, इसके साथ साथ करियाना स्टोर, जो मिल्क शॉप्स हैं, दूध दही की दुकानें हैं, इसके ख़िलाफ़ जो है वो इसकी खिलाफ वर्जी करता हुआ नज़र आएगा, उसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो ये इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाना जो है वो ज़िले इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी होगी। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की जानिब से जो है वो अब बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। शाम 8 बजे जो है वो तमाम मार्केट्स को बंद करने के जो है वो जारी कर दिए गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया बसाम, हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। और अभी आगे बढ़ें और आपको बताएं कि स्मॉग और फोग ने लाहौर और एतराफ़ को अपनी लपेट में लिए रखा है और हद निगाह में कमी के बायस मोटरवेज़ को भी बंद करना पड़ा है। 10.5 घंटे बंद रहने के बाद मोटरवे M2 और M3 को अब खोल दिया गया है। हद निगाह में बहती के बाद लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी खोल दिया गया है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे गुज़िश्ता 12:30 बजे बंद की गई थी और लाहौर से काफ़िलों की शक्ल में गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त भी दे दी गई है। स्मॉग के बायस लाहौर एयरपोर्ट रनवे पर हद निगाह 350 मीटर रिकॉर्ड की गई। एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली और उड़ान भरने वाली परवाज़ों को दुश्वारी का सामना है, जबकि हद निगाह में कमी के बायस ट्रेन ऑपरेशन भी मुसाफिर खासे परेशान नज़र आते हैं। तो स्मॉग और फॉग ने लाहौर और एतराफ़ को अपनी लपेट में ले लिया। हद निगाह में कमी के बायस मोटरवेज को बंद करना पड़ा, जबकि 10.5 घंटे बंद रहने के बाद मोटरवे M2 और M3 को अब खोल दिया गया है। स्मॉग के बाद स्कूलों की बंदिश के मामले पर आपको आगाह करें। घर से ऑनलाइन क्लासेस के लिए सहूलियात का फुकदान, वालिदैन के लिए घर से बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दिलवाना मुश्किल हो चुका है। बेशतर बच्चों के पास स्मार्टफोन, इंटरनेट की सहूलत नहीं है। बेशतर घरों में टैब सिर्फ एक और ज़ेर तालीम बच्चे 4 हैं, जबकि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दिलवाने के लिए हमारी कोई ट्रेनिंग ही नहीं है, वालिदैन की जानिब से कहा जा रहा है। और कहते हैं कि हुकूमत बच्चों के तालीमी मुस्तकबिल बारे वाज़ेह प्लान मुरतब करे। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात करेंगे इस हवाले से। जी जुनेद। जी, ऑनलाइन क्लासेस लेना बच्चों के लिए और वालिदैन के लिए दर्द-ए-सर बन गया, क्योंकि सहूलियात का फुकदान है, इंटरनेट की सहूलत नहीं है बाज़ घरों में स्मार्टफोन नहीं है, नंबरों वाला फ़ोन है। तो उस सूरत हाल में लाइट भी जो है बार बार जा रही है, जिसकी वजह से बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेना मुश्किल हो चुका है। इसी वाले से हम बच्चों और उनके वालिदैन से भी बात करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? एक मोबाइल है, हम सब बहन भाई होते हैं और फिर क्या नाम है, एक मोबाइल पे लेना इतना मुश्किल काम है। और फिर इंटरनेट का भी मसला होता है, क्योंकि उसके लिए चाहिए होता है, लाइट चली जाए तो फिर इंटरनेट भी चला जाता है। तो इस वजह से क्या नाम है, हमारे लिए मुश्किलात का बाइस है। जी, यकीनन बच्चों की पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। यहाँ पर वालिदैन भी मौजूद हैं। क्या सहूलियात होनी चाहिए घर पे ताकि ऑनलाइन क्लासेस बच्चे ले सकें? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और मैं गवर्नमेंट से ये कहूँगी कि बच्चों के लिए कुछ ऐसा इंतज़ाम किया जाए जिसमें उसकी पढ़ाई का हर्ज ना हो। देखिए, गरीब माँ बाप है, वो इतना इंटरनेट का पैकेज नहीं करवा सकते। दूसरा, ऑनलाइन क्लासेस करवा रहे हैं, लेकिन वो बच्चों तक पहुँचती नहीं, लाइट चली जाती है, नेट प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई अच्छा इकदाम करे, स्मोक को ख़त्म किया जाए। जी, आपने बात सुनी कि तालीमी साल जो है वो सुकड़ता जा रहा है। अगर मज़ीद छुट्टियाँ दी गई तो बच्चों के फेल होने का भी खदशा है। इस हवाले से हुकूमत को चाहिए कि पहले ट्रेन करे, वालिदैन को नहीं है और बच्चों के लिए भी। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुनेद थे, अपडेट कर रहे थे।
शहर की सफाई के लिए 3 अरब 50 करोड़ जारी। महकमा खजाना ने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को फंड जारी कर दिए। LWMC इस बजट से 3000 नए सैनिटरी वर्कर्स भर्ती करेगी, जबकि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी नई मशीनरी और नया साजो सामान भी खरीदेगी। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर हमारे साथ इन डिटेल्स बताएंगे। जी कैसे खोकर? जी, महकमा बल्दियात ने लाहौर शहर की सफाई सुथराई के लिए 7.8 अरब रुपये महकमा खजाना से मांगे हैं, जिस पर महकमा खजाना ने फौरी तौर पर जो है महकमा लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को महकमा खजाना ने 3.5 अरब रुपये जो है यानी कि 3 अरब 50 करोड़ रुपये जो लाहौर की सफाई सुथराई के लिए जारी कर दिया है। ये बजट से महकमा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है वो 3000 नए सैनिटरी वर्कर भर्ती करेगा, नई मशीनरी खरीदेगा, नया साजो सामान खरीदेगा और लाहौर शहर की सफाई सुथराई को बेहतर करेगा। ये बजट जो है 3.5 अरब रुपये जो है ये कसूर, ननकाना या शेखुपुरा पर खर्च नहीं किया जाएगा, सिर्फ लाहौर शहर पर खर्च किया जाएगा। एक्सक्लूसिवली जो है लाहौर शहर के लिए ये बजट जारी हुआ है और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को हिदायत की गई है कि लाहौर शहर की सफाई सुथराई को बेहतर करे, जबकि बल्दिया लाहौर जो है उसको उसके प्रोजेक्ट के लिए तरक्याती मनसूबों के लिए महकमा खजाना पहले ही 10 अरब रुपये जो है वो पिछले हफ्ते जारी कर चुका है और आज जो है वो कंपनी को हमारे साथ अपडेट कर रहे हैं। किसानों पर ज़रिए आमदन टैक्स लगाने की तैयारी। ज़रिए आमदन टैक्स का तरमीमी बिल आज पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। पंजाब असम्बली इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। एजेंडा जारी हो चुका है। क्या एजेंडा है, राउद इरशाद हुसैन से जान लेते हैं। जी राउद इरशाद। पंजाब असम्बली का इजलास का जो एजेंडा जारी किया गया उसके मुताबिक आज वो इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे, जबकि आज के इजलास के एजेंडे में महकमा सनत और तिजारत और सरमायाकारी बोर्ड से मुतल्लिक सवालात के जवाब दिए जाएंगे, जबकि ज़राअत से मुतल्लिक जो तरमीमी ऑर्डिनेंस जो एक्ट है तरमीमी बिल को ऐवान में पेश किया जाएगा। इस तरह से मुख्तलिफ महकमों की जो कारकर्दगी की रिपोर्ट्स हैं वो ऐवान में पेश की जाएंगी, जबकि पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स पर मुख्तलिफ नोयत की कार्रवाई और तवज्जो दिलाओ नोटिस पर भी कार्रवाई जो है वो आज के इजलास का हिस्सा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राउद इरशाद हुसैन। बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे के मंजूर शुदा फंड्स तलब कर लिए गए हैं। LDA ने PND से मंजूरी के मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी होने के बाद फंड का तकाजा किया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ दुर्र नायाब हैं। जी दुर्र नायाब, बताइएगा। बिल्कुल, बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मनसूबा जो कि निगरान हुकूमत का मनसूबा था और इस पर काम बड़ा तेज़ी के साथ किया गया। ये एक मेन आर्टरी थी जो कि लाहौर शहर के एंट्रेंस एग्जिट के लिए, चाहे वो मोटरवे से कनेक्टिविटी हो या पीछे GT रोड से या रिंग रोड जो कि एयरपोर्ट की जानिब से आ रही है उसके साथ कनेक्टिविटी हो, बहुत ज़रूरी था। अब इस पे फंड्स का जो मसला था उसको हल किया जा रहा था और हल किया जा चुका है। उसमें PND के साथ मुतअद्दिद मीटिंग्स इजलास के बाद PWP के इजलास में इसकी मंजूरी दी जा चुकी है। रिवाइज PC1 होने के बाद मंजूरी के बाद अब इसके मिनट्स भी जारी कर दी गए, जिसके बाद LDA ने फौरी तौर पर 75 करोड़ से ज़ायद के फंड्स मांग लिए हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग को चीफ इंजीनियर LD की जानिब से मरासला लिखा गया है जिसमें 75 करोड़ से ज़ायद फंड के इजरा का तकाजा किया गया ताकि पेंडिंग लाइबिलिटीज़ दी जा सकें कंट्रैक्टर्स को। वो कंट्रैक्टर्स जिन्होंने अपना काम बर वक्त मुकम्मल किया, पिछले निगरान सेटअप में मुकम्मल किया, जैसे पैकेज 1 की बात की जाए, उनकी अदायगियाँ भी अब तक ना होना एक LDA पे एक बड़ा वाजिया और सवालिया निशान बना हुआ है। अब ये पैसे मिलने से उनकी अदायगियाँ हो जाएंगी। दूसरा मसला जो है वो जूं का तू रहेगा, वो बंद रोड के जो एंट्री पॉइंट है बाबू साबू से उसकी सर्विस लेन की कुशादगी ना होना, जिसके लिए 3 अरब से ज़ायद के फंड दरकार है। उसके लिए LDA ने अलहदा से समरी लिख रखी है ताकि उसकी कुशाद सके। ठीक है दुर्र नायाब, बहुत शुक्रिया।